Hello friends, today in this class we will discuss in depth about the Great Nicobar project. Now this Great Nicobar project is very important and very strategic if we consider India's interest in the Indo-Pacific region. Considering the threat from China and to emphasize our importance in the Indo-Pacific trade route, it is very much imperative that we look at the bright side of the Great Nicobar project. Now, when we try to decode that why we require this Great Nicobar project, there are three major reasons that we can attribute to it. The first one being the capability gap. India ports currently lack natural deep water berths capable of handling ultra large container ship. Second, the revenue drain. Domestic cargo is forced into foreign transshipment, resulting in substantial continuous revenue loss for the Indian economy. That is the second part. The third one being the regional threat. Myanmar, China and Sri Lanka are actively accelerating deep water infrastructure to permanently capture this regional trade. अब ये ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर अपना इंटरेस्ट और अगर हम बात करते हैं अपनी हेजेमनी को एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसीडरिंग आज के टाइम पे कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पर्टिकुलरली गोस थ्रू दिस रूट. और इंडिया की अभी फिलहाल की घड़ी में क्योंकि इसके रिलेटेड कैपेबिलिटी नहीं है और हम ये कैपेबिलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, इस वजह से ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है अगर हम बात करते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. अगर हम रेवेन्यू ड्रेन की बात करते हैं, कैपेबिलिटी की बात करते हैं या हम किसकी बात करते हैं, रीजनल trade की. Now what this whole project is all about, let's try to understand. See, Great Nicobar act as a natural choke point on the east-west international shipping route. As you can see over here, this is the east-west international shipping route that has been placed over here. Now what it augurs well for India, it gives us the strategic placement, positions India as a primary node in the Indo-Pacific, strengthening national defense and security presence, and Galathea Bay, जहां पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप होगा अंडर द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इट ऑफर्स अ नेचुरल वाटर डेप्थ that is exceeding 20 meters, which eliminate the deep water deficit and attract both gateway and the transshipment cargo. देखो सारी गेम तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की है. यहां पे जो हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का, जो कि ग्लेथिया बे में बनाया जाएगा, और उससे हमें दो चीजें होती हैं. एक तो हमें नेचुरल एडवांटेज ग्लेथिया बे ऑफर कर रहा है और दूसरा उसके साथ हम बात कर सकते हैं हमें एक स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट मिलती है कहां पे, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर. Now you can see over here that there are four components that are there to this whole project. One is the transshipment terminal, that is 14.2 million capacity at Galathea Bay, designed to reclaim transshipment dominance from the foreign ports. भाई हम यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहे हैं और जो अभी हमारी फॉरेन पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंस है उसको हम खत्म करना चाहते हैं. Second one is Greenfield International Airport, that is scaling from 1 million to 10 million passengers annually, up from the Port Blair's current 1.8 million capacity. The third one being hybrid power plant, that is 450 gas and short solar based facility, redundant system designed for uninterrupted operation, moving away from current diesel reliance. And the fourth one being that is an area township, that will be an integrated township to support the residential, commercial and institutional personnel. So if we try to see what is Great Nicobar project, तो ये चार कंपोनेंट है. और अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हमें क्यों चाहिए, क्या मेन पर्पस है, तो वो हमें ये पर्पस दिखाई दे देता है. एक तो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, कंसीडरिंग कि चाइना का डोमिनेंस कितना ज्यादा है इंडो पैसिफिक रीजन में. और दूसरा अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें इस रीजन के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करना है एज अ डोमिनेंट प्लेयर, तो हमें यहां पे अपना प्रेजेंस को बनाए रखना होगा, प्रेजेंस को रिक्लेम करना होगा और उसको डोमिनेट करने के लिए वी रिक्वायर अ ट्रांसशिपमेंट port. So that is what is the objective behind having these four components that we have just discussed. So you need to be aware of the components as well, and you need to be aware about the objectives, that why we have launched this Great Nicobar project. Now as you can see over here, ये project कुछ एक दो सालों का नहीं है, ये एक project है जो 2047 तक चलेगा और ये तीन phases में डेवलप होगा. पहला 2025 से 2035 तक है, फिर सेकंड है 2036 से 2041 तक और लास्ट है 2042 से 2047 की तरफ. जब हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात करते हैं हमारे सामने बहुत सारे कंसर्न्स आते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स आते हैं, सोशल कंसर्न्स देखने को मिलते हैं और इकोनॉमिक कंसर्न्स देखने को मिलते हैं. अब इसके रिलेटेड एक कंसर्न आता है कि क्या हमने यहां पे
प्रॉपर तरीके से रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को फॉलो किया है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है और काफी बार इसको हाईलाइट भी किया गया है कि वेदर इट इज अबाउट द एफॉरेस्टेशन, वेदर इट इज अबाउट द फेलिंग ऑफ द ट्रीज, और वेदर इट इज अबाउट द सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल, हैव वी अंडरटेकन इनफ रेगुलेशन और यहां पे प्रॉपर मैकेनिज्म्स को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है? नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो स्टेट्स कि अगर हम यहां पे बात करते तो प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस ली गई है इफ वी टॉक अबाउट द EIA 2006 या कोस्टल रेगुलेशन जोन के अकॉर्डिंगली. देन यू हैव द ओवरआर्चिंग कमिटी चेयर्ड बाय द चीफ सेक्रेटरी. सो एज यू कैन सी ओवर हियर देयर हैव बीन इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म्स दैट हैव बीन देयर to ensure strict compliance with the statutory approvals, whether it is related to environmental clearance or whether it is related to the committee on the Shompen and the Nicobarese welfare. That are the tribes that are going to be, let's say, somehow affected by this Great Nicobar project. Now, the ecological ledger balance faced forest diversion with massive compensatory afforestation. भाई बिल्कुल ठीक बात है कि यहां पे आपको डायवर्जन देखने को मिल रहा है, बट उसके सामने क्या हमने कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की है? क्या हमने नेट फॉरेस्ट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है. तो पीआईबी हमें एक डेटा प्रोवाइड कर रहा है. क्या 1.82% फॉरेस्ट डायवर्जन हुई है? टोटल डायवर्जन लिमिट की गई है 1.82% ऑफ अंडमान एंड निकोबार फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, 49.86 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट यूटिलाइज्ड, मैक्सिमम 7.11 लाख ट्रीज टू बी फेल्ड आउट एग्जीक्यूटेड इन स्ट्रिक्ट फेजेस. डेटा बता रखा है कि कितने यहां पे पेड़ गिरेंगे, बट उसके सामने ये भी बता रखा है नेट पॉजिटिव ग्रीनिंग. स्पेसिफिक एरिया है दैट इज 65.99 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड दैट हैव बीन प्रिजर्व्ड एज स्ट्रिक्ट ग्रीन जोन विद एब्सोल्युटली जीरो ट्री फेलिंग. 97.3 square kilometer of compensatory afforestation planned in Haryana due to Andaman and Nicobar having greater than 75% forest cover. ये हमारे रूल्स हैं अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, कि जहां पे 75% से तो आप वहां पे अंडरटेक कर सकते हो, लाइक द स्टेट्स लाइक हरियाणा. Then you have 2.4 million trees that have been planted in Andaman and Nicobar under the एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव. सो एज यू कैन सी ओवर हियर तीन चीजों से इन्होंने यहां पे कोशिश की है कि हम नेट फॉरेस्ट ग्रीनिंग कर सके. कैसे? एक तो एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव, देन यू हैव द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्लान्ड इन हरियाणा, एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं हमने यहां पे ग्रीन जोन्स को एस्टैब्लिश किया है. ओके, now this is the particular part that you need to understand कि development is strictly calibrated to guarantee zero displacement of indigenous communities. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट यहां पे बताया जा रहा है protecting the Shompen, that is the hunter gatherer population 237 and Nicobarese coastal population 1094 communities. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहां पे कोस्टल कौन सी है, that is Nicobarese, right? Zero displacement mandate, tribal habitations at the New Chingin and Rajiv Nagar are explicitly protected. The administration guarantees no relocation. Policy alignment, full compliance with the Shompen policy 2015 and the Zarawa policy 2004. That is aligned with the article 338 of the constitution to protect the PVTGs, that is the particularly vulnerable tribal groups. An active oversight mandated by Ministry of Environment, Forest and Climate Change oversees tribal issues. Continuous consultation with Anthropological Survey of India. तो यहां पे तो गवर्नमेंट का कहना है कि हमने प्रॉपर तरीके से रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को फॉलो किया है और प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है. अगर हम बात करते हैं द लेट्स से वी टॉक अबाउट द जो भी हमारे ट्राइबल लोग हैं, राइट? ओके, नाउ comprehensive disaster management protocols have been there to mitigate regional seismic and cyclonic risk. आपको पता है कि ये रीजन बहुत ज्यादा seismic and cyclonic risk से vulnerable है, तो उसके रिलेटेड क्या क्या किया गया ध्यान से देख सकते हैं. एक तो सीजमिक एक्टिविटी है तो उससे अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज जनरेट हो सकती है, तो उसके लिए इंजीनियरिंग के लिए डीप रूटेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एट द गलेथिया बे टर्मिनल एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव वल्नरेबिलिटी एंड अ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान. Second is extreme weather, cyclonic disruptions. You have a 450 hybrid solar power and gas power plant designed with redundant components to ensure continuous operation even if primary system fail. Operational hazards के लिए dedicated environmental management plan है जो कि isolate कर रहा है hazards at the source during the construction and the operation phases. तो ये नहीं है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है. प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के साथ आपको ये भी देखना होता है कि क्या हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट को, अगर हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल रिस्क से सिक्योर कर पा रहे हैं. सो उसके लिए आपके पास सीजमिक एक्टिविटी के लिए प्लान है, एक्सट्रीम वेदर या साइक्लोनिक डिसरप्शंस के लिए प्लान है, और ऑपरेशनल हैजर्ड्स के लिए भी आपके पास एक सिस्टम प्लान है. तो यहां पे अगर हम इसकी समरी देखें तो एक चीज पता चलती है कि विन क्या है. एलिमिनेट करता है रिलायंस ऑन फॉरेन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट लाइक कोलंबो एंड सिंगापुर. लेवरेजेस आर प्रॉक्सिमिटी टू द ईस्ट वेस्ट रूट. स्ट्रेंथन इंडियाज डिफेंस फुटप्रिंट इन द अंडमान सी. द holistic guarantee, total compliance with EIA 2006, absolute zero displacement of the tribes, net addition of forest cover, and then mitigate 1.8%, 82% of forest diversion with 97.3 square kilometer of afforestation. Now, this is the government's viewpoint that we are discussing over here. This strictly is basically related to government
what the government says, that what they have done and what they want to achieve and what are the positives, and the government stance has been there that there will be no displacement of the indigenous tribes. So this was in detail about the Great Nicobar project from the government point of view, what they think this Great Nicobar project is all about, why they are planning to do it, and somehow I think you will be able to understand कि हम अपने आप को हर जगह पे अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज रिलेटेड टू PLI स्कीम्स, वेदर इट इज रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर मिशन। तो उस कंटेक्स्ट में यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी फॉरेन रिलायंस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए खत्म करें, तो उसके लिए हमने एक डीप सी गलेथिया बे को यूज करना चाहते हैं, और उसके लिए हम ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। सो दिस वाज इन ऑल अबाउट द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।